Hello students, welcome to Yourpedia. I am Jitendra Tyagi and I am here today to discuss a very important doubt, very important confusion among the students, and many students have sent me this query that what is the difference between PAF and SAF and when they have to pay SAF or PAF. Okay, so SAF और PAF का क्या difference है in CCMD counseling, क्या उनका दोनों का significance है, that we are going to discuss, and we will more focus on PAF, okay, because many students know about SAF but they are confused about PAF when they have to deposit this PAF, right, and who has to deposit this PAF. So a lot of confusions regarding PAF I am going to discuss, right. So first of all, SAF stands for seat acceptance fee, okay. So whenever you get a seat in any round, regular round, say regular round 1 or 2 or 3, right. So then just after getting the seat in a college, you have to pay 30,000, okay, that is seat acceptance fee. Suppose we can talk about this current scenario. So right now many students have got seats in different NITs through CCMT. So to move forward, okay, to further involve in the counseling process, they have to pay 30,000 at this time for general students, okay, and this is called SAF, seat acceptance fee, that everyone who wants to continue with the counseling has to pay. ये सभी को पे करना है जो काउंसलिंग में रहना चाहते हैं. If you don't pay, okay, then you will be out of the regular rounds, okay, in next round you will not be considered, okay. तो SAF पे करना है जिनको भी सीट अलॉट हुआ है. जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है, you need not to pay this SAF, and those who do not pay SAF, okay, before 20 of June, the last date is 20 June, they will be out of the counseling process for regular rounds. Later they may join special rounds, right. So this is about SAF. Now what after paying SAF? Suppose you have paid, many students have paid SAF, okay, so then you have to show the willingness. After willingness you have to upload the documents, right. Now you have to wait for the next round, round 2, round 3. Some students may get seat in round 2, they did not get any seat right now, so they will get it in round 2 or it may in round 3, right. So now talk about PAF, that is partial admission fee, ओके, जो कितना है 10,000 है जनरल EWS OBC के लिए, SC ST PWD के लिए कुछ रिलैक्सेशन है उसमें, ओके. सो ये 10,000 आपको कब पे करना है, ये कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में. तो पार्शियल एडमिशन फी ये हमें कब पे करना है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द रेगुलर राउंड्स, ओके. अभी जैसे रेगुलर राउंड 1 हुआ उसमें आपने SAF पे कर दिया, दैट्स इट, ओके. आपको PAF अभी रेगुलर राउंड 1 के बाद पे नहीं करना और रेगुलर राउंड 2 के बाद आपको दिस PAF पे नहीं करना, ठीक है ना. ये कब पे करना है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द रेगुलर राउंड्स, जब सारे रेगुलर राउंड ओवर हो जाएंगे, ठीक है, और आपके पास एक सीट है, आपके पास एक सीट है जो किसी भी राउंड में अलॉट हुई हो, आपको 1 में या 2 में या 3 में, ठीक है, और वो सीट है आपके पास अभी, तो आपको उसको कंफर्म रखने के लिए यू हैव टू पे पार्शियल एडमिशन फी, ठीक है. तो क्या प्रोसीजर है उसका, वही मैं आपको बता रहा हूं यहां पे. पार्शियल एडमिशन फी, ऑनलाइन एडमिशन, ठीक है, PI रिपोर्टिंग इन द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट बाय डिपॉजिटिंग द पार्शियल एडमिशन फी ऑनलाइन ऑन द CCMT पोर्टल बाय कैंडिडेट्स ऑफ ऑल राउंड्स एंड अपलोडिंग कम्युनिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट. तो इसका जो डेट है PF को पे करने का, सबसे पहले तो वो क्या है, अभी तो इसका डेट जो है वो है 11 जुलाई से लेके 16 जुलाई के बीच में, जब सारे राउंड्स ओवर हो जाएंगे आपके रेगुलर राउंड्स. उसके बाद आपके पास अगर कोई सीट है, ठीक है, चाहे वो किसी भी राउंड में आपको मिली है या पहले राउंड में कोई सीट मिली है और अगले राउंड में वो अपग्रेड हो गई है, ठीक है, अगले राउंड में और ज्यादा अपग्रेड हो गई है, सो यू हैव ए सीट आफ्टर थर्ड राउंड सपोज, देन टू रिटेन दैट सीट विद यू यू हैव टू पे पार्शियल एडमिशन फी. क्लियर. और उसका डेट क्या रहेगा, 11 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में आपको ये पे करना होगा पार्शियल एडमिशन फी. तो अभी इसमें टाइम है,
ठीक है, आज से अगर हम देखें तो अभी हमारे पास काफी टाइम है इसको पे करने के लिए। उसके पहले अगर आपको कोई दूसरा ऑफर मिल जाता है किसी IIT से MS के थ्रू या MTech के थ्रू, यू कैन गो देयर। ओके, तो ये 10,000 तो आपको पे फिर नहीं करना है, और जो आपका SAF है वो आपका रिफंड हो जाएगा, नो इशूज उसमें, अगर वो आपने पे कर दिया है तो। क्लियर? तो PF अब ये कहां पे करना है, ये क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि भाई पार्शियल एडमिशन फी जो पे करना है वो इंस्टीट्यूट के अंदर जाके पे करना है या CCMT के ही अंदर हमें पे करना है। ओके, तो आपको वो CCMT में जहां पे आप SAF पे कर रहे हो, देयर यू हैव टू पे दिस PF आल्सो, वो भी आपको CCMT के पोर्टल पर ही लॉगिन करके पे करने का ऑप्शन आएगा और वहीं पे आपको पे करना होगा। ओके, तो PF कब पे करना है, डेट आपके सामने है, कितना पे करना है, 10,000 जनरल OBC EWS के लिए, SC ST PWD के लिए कुछ रिलैक्सेशन होगा, यू कैन चेक दैट। ओके, अब इसके बाद यहां पे नेक्स्ट क्या है आपका, उसके बाद अगर आपने PF डिपॉजिट कर दिया है, जैसे PAL मतलब प्रोविजनल एडमिशन लेटर। ओके, अगर आप PF डिपॉजिट कर देते हो और आपका वहां पे उस इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो इंस्टीट्यूट भी आपके डॉक्यूमेंट को एक बार वेरीफाई करेंगे, तो अगर वो वेरीफाई हो जाता है सक्सेसफुली, देन दे विल गिव यू प्रोविजनल एडमिशन लेटर, दैट इज कॉल्ड PAL। ये आपका लेटर जनरेट हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, ये ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, PF आपको ऑनलाइन ही डिपॉजिट करना है, कॉलेज में नहीं जाना है, और CCMT पे ही डिपॉजिट करना है, राइट। नाउ अब अगर इसमें अदर सिचुएशन क्या राइज हो सकती है, तो उसको मैं एक बार डिस्कस करने जा रहा हूं। सपोज आपके पास राउंड 3 के बाद एक सीट है, आपको कोई सीट मिली NIT सूरत कल में, मान लिया आपको VLSI मिला हुआ है, थर्ड राउंड के बाद भी आपके पास वो रिटेन है अभी, ठीक, बट आपने पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं किया है। इफ ए कैंडिडेट फेल्स टू डिपॉजिट द पार्शियल एडमिशन फी, अगर आप 11 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में ये फीस को पे नहीं करोगे, देन द अलॉटेड सीट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड, तो आपकी जो सीट है ये कैंसिल हो जाएगी राउंड 3 के बाद। अगर आपने 11 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में इसको पे नहीं किया, ठीक है, PF को, तो ये जो सीट आपके पास थी ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, और आपका जो SAF है, जो सीट एक्सेप्टेंस फी आपने पहले पे किया हुआ है 30,000, वो आपका रिफंड हो जाएगा, लेकिन जो उसमें डिडक्शन होगा वो कितना होगा, 2,000। यहां पे जो डिडक्शन होगा वो कितना होगा, 2,000 होगा। इस रीजन की वजह से अगर थर्ड राउंड के बाद आप PF डिपॉजिट नहीं करते हो, अब उसकी वजह से आपका अगर कैंसिल होता है सीट, तो 2,000 का वहां पे आपको डिडक्शन देना पड़ेगा। ओके, अब एक कंडीशन और है, प्रोवाइडेड यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड। अब जैसे ही आपने मतलब अप्लाई कर दिया कि भाई, या मतलब आपने सपोज ये पे नहीं किया, तो आपकी सीट क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है, तो क्या उसके इमीडिएटली आपका रिफंड आ जाएगा, नहीं, इमीडिएटली आपको पैसा नहीं आएगा वापस। ठीक है, आपका ऑर्डर हो गया कि भाई ये रिफंड करना है, बट वो रहेगा CCMT के पास, वो ये चेक करेंगे पहले, आर यू ज्वाइनिंग स्पेशल राउंड, बिकॉज अगर ये सीट आपकी कैंसिल होती है, स्टिल यू हैव ऑप्शन ऑफ गोइंग फॉर स्पेशल राउंड। अगर आपने मान लिया राउंड 3 के बाद ये PF आपने डिपॉजिट नहीं करा, ठीक है, अब उसके बाद दो केस बनेंगे यहां पे, समझो ध्यान से, ठीक है, आपने क्या किया, ये PF डिपॉजिट नहीं किया मान लिया, क्लियर, ध्यान से समझो इसको। अगर आपने इसके बाद राउंड 3 के रेगुलर राउंड के बाद ये PF डिपॉजिट नहीं किया, तो क्या क्या सिचुएशन अराइज होंगी वो ध्यान से समझो। एक सिचुएशन ये है कि आपकी सीट तो कैंसिल हो गई है और आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, तो जब स्पेशल राउंड सारे खत्म हो जाएंगे, आपकी फीस, ये जो 2,000 रुपए का डिडक्शन है, ये कटने के बाद रिफंड हो जाएगा, तो 28,000 आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे दिया होगा। सिंपल है, 2,000 रुपए कट के 28,000 वापस आ जाएगा अगर आप स्पेशल राउंड में नहीं जाते हो। बट अगर सपोज योर सीट हैज बीन कैंसिल्ड, ओके, बट यू आर गोइंग फॉर स्पेशल राउंड नाउ, आप जाना चाहते हो स्पेशल राउंड में, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है स्पेशल राउंड के लिए, तो जो आपका रिफंड यहां से इशू होने वाला था वो रुक जाएगा, और वो क्या होगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी में। मतलब यहां से आपका ट्रांसफर कहां पे हो जाएगा, वो पैसा जो 30,000 आपने दिया था वो स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी में चला जाएगा। क्लियर,
आपको रिफंड नहीं होगा, बाद में होगा, अभी नहीं होगा, वो ट्रांसफर हो गया, बिकॉज यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल राउंड। ठीक है, अब जो स्पेशल राउंड में हमें पैसा पे करना होता है वो कितना करना होता है, अगर उसकी पार्टिसिपेशन फी हम देखें वो 40,000 है। वो 30 तो इक्विवेलेंट है किसके, सीट एक्सेप्टेंस फी के, और वो 10,000 किसके इक्विवेलेंट है, पार्सल एडमिशन फी के। तो वहां पे आपको पे करना होता है 40,000, लेकिन 30,000 तो आपका ऑलरेडी वहां पे डिपॉजिट है सीसीएमटी में, वो तो वहीं से ट्रांसफर हो रहा है आपका रेगुलर राउंड के एसएफ से, तो वो 30 आपको पे नहीं करना, रिमेनिंग 10,000 आपको पे करना पड़ेगा टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल राउंड। तो बात तो वही बन के आई ना, आपने अभी रेगुलर राउंड के बाद आपने सीट भी आपके पास थी, आप स्पेशल राउंड में भी जाना चाहते हो, और आपने क्या किया, वो पीएफ जो आपका था वो आपने डिपॉजिट नहीं किया था, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज अगर स्पेशल राउंड में जाना है तो वहां तो डिपॉजिट करना ही पड़ेगा आपको, वो उतना ही 10,000। तो बेटर है कि आप उसको डिपॉजिट कर देना पीएफ को, अगर आप उस सीट को अपने पास रख के और स्पेशल राउंड में जाना चाहते हो तब आपको वो पे करना चाहिए। ओके, अदरवाइज कोई फायदे का सौदा नहीं रहेगा ये कि आप पीएफ जमा ना करो, स्पेशल राउंड में आप जाना चाहते हो और जा रहे हो तो बाद में जमा करना पड़ेगा कुछ टाइम, 2-3 दिन बाद ही आपको, जब स्पेशल राउंड स्टार्ट होंगे। क्लियर, तो पहले ही डिपॉजिट कर दो, एटलीस्ट क्या रहेगा कि सीट रहेगी आपके पास वो। ठीक है, बट अगर आपके पास जो सीट है और वो आपको पसंद नहीं है, मतलब आप चाहते ही नहीं हो कि उस सीट में आप एडमिशन लो, राउंड 3 के बाद जो सीट आपके पास बची हुई है आप उसमें नहीं जाना चाहते हो, तब आप ये पीएफ डिपॉजिट ना करो, सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, और जो आपका पैसा है वो स्पेशल राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा, आप स्पेशल राउंड में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे वो 10,000 पे कर दो। उससे क्या होगा कि आपके पास कोई सीट नहीं है, अब फ्री हैंड होके जा रहे हो आप किसमें, स्पेशल राउंड में। ओके, तो ये हमारा प्रोसीजर है पीएएफ का। अब लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑनलाइन विड्रॉवल। देखो, आपका जो रेगुलर राउंड के रिजल्ट आ जाएंगे तीनों के, उसके बाद आपके पास विड्रॉवल का ऑप्शन तो हर एक राउंड के बाद होगा। एक बार आपने एसएफ डिपॉजिट कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक लेटर मिल जाता है, ठीक है ना, सर्टिफिकेट, राउंड 1 में, राउंड 2 में या राउंड 3 में, किसी भी राउंड में मिले, उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हो किसी भी राउंड के बाद। लेकिन अगर सपोज आप कंटिन्यू कर रहे हो, विड्रॉ नहीं किया आपने, राउंड 1 के बाद भी आपने कंटिन्यू कर दिया, फ्लोट किया या स्लाइड किया, राउंड 2 के बाद, ठीक है, राउंड 3 में फाइनल, उसके बाद क्या होगा, अब आप विड्रॉ करना चाहते हो काउंसलिंग से, ठीक है, आप उस सीट को नहीं रखना चाहते हो, कर सकते हो विड्रॉ आप। ठीक है, तो ऑनलाइन विड्रॉल कैन बी डन फ्रॉम द एडमिटेड इंस्टीट्यूट, जो लास्ट में आपके पास सीट बची हुई है एडमिटेड इंस्टीट्यूट, वहां से 11 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन एडमिशन इन द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट, द कैंडिडेट में विड्रॉ फ्रॉम द एडमिटेड इंस्टीट्यूट ऑनलाइन, ये भी सारा ऑनलाइन होगा विड्रॉ करने के लिए, सीसीएमटी के लॉगिन के थ्रू ही आपको वहां पे ये ऑप्शन दिखेगा विड्रॉ करने वाला, ठीक है ना, ओटीपी आएगा, उसके थ्रू आप विड्रॉ कर सकते हो। ओके, अब विड्रॉ कर लिया तो सीट आपकी गायब हो गई, आपके पास सीट नहीं है। ठीक, अब आपको जाना है अगर किसमें, सच कैंडिडेट्स में पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड बाय मेकिंग ए फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। यहां पे आपने विड्रॉ कर लिया राउंड 3 के बाद और आप चले गए किसमें, स्पेशल राउंड में, फिर से रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर से चॉइस फिलिंग करोगे। अब आपके पैसे का क्या होगा, जो 30,000 आपने जमा किया था उसका क्या होगा, अगेन वही सिचुएशन बनेगी कि वो 30,000 जो सीसीएमटी के पास है वो वहां से ट्रांसफर हो जाएगा आपका किसमें, स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी में। तो अलग से आपको स्पेशल राउंड के लिए पार्टिसिपेशन फी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, केवल 10,000 देना पड़ेगा, 30,000 आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, और अगर आपने पीएफ भी डिपॉजिट कर दिया ऑलरेडी, तब तो 40 का 40 आपका ट्रांसफर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो एसएफ है, जो 30,000 और प्लस पीएफ है, ये राउंड 1, स्पेशल राउंड 1 के बाद भी विड्रॉ किया जा सकता है, तब भी आपको 1 या 2,000 रुपए का डिडक्शन होता है, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वापस मिल जाता है पैसा। दिक्कत सिर्फ राउंड 2 के बाद आएगी कि अगर स्पेशल राउंड 2 हो गया और उसके बाद भी आपके पास कोई सीट बच जाती है, तो वो मिल गई आपको सीट, तो फिर वो सीसीएमटी आपका पैसा आपको डायरेक्टली नहीं ट्रांसमिट करेगा, वो उस इंस्टीट्यूट के पास जाएगा, क्योंकि उसकी एक सीट आपने बुक कर ली है, आगे कोई राउंड तो होना नहीं है फर्दर। ठीक है, तो वो कॉलेज का और आपका मैटर रहेगा, उसके बाद सीसीएमटी उससे बाहर हो जाएगा।
राइट। राउंड 1, स्पेशल राउंड 1 तक तो आपके पास ऑफर है ना, रिफंड का ऑप्शन है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो भी बच्चा रिस्क लेना चाहता है फॉर्म भर के, ठीक है, वो पैसा उसका सेफ है स्पेशल राउंड 1 के बाद तक, लेकिन 2 के बाद वो फिर कॉलेज से उसको डील करना पड़ेगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा जो आपको याद रखना है। आई होप कि आपको पीएफ, पार्शियल एडमिशन फी, क्लियर हो गया होगा क्या होता है और कब डिपॉजिट करना है। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं रेगुलर राउंड के, ठीक है। जब हम स्पेशल राउंड में जाएंगे तो उसके बाद के जो रिफंड रूल्स हैं वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आपको सारी चीजें क्लियर हम करते रहेंगे। कीप वॉचिंग योरपीडिया एजुकेशन, ऑल द बेस्ट।